CSIR is active in many sectors and has many innovations to its name. These include engineering, the strategic sector, including aerospace, water, health services and technologies of the future. This is the exhibition on engineering, which include metallurgy, beneficiation of low-grade iron ore fines and tailings, which are being employed in India thanks to CSIR, and benefiting India with several thousand crores for its industries. High wall mining, which is Asia's first high wall mining system. The various sectors have been exhibited here. And the Honorable Prime Minister taking keen interest in each of these sectors. The strategic sector, including aerospace, with the Drishti transmission meter, which helps in the visibility measuring system that provides information to pilots on visibility for safe landing and takeoff operations and is suitable for all airport categories. The HUD or head-up display for Tejas, which gives vision to pilots. The LED-based taxi and landing lights for LCAs. The wind and fin navigation lights for LCA Mk2 aircraft. And the earthquake warning system. This is the exhibit on water. TerraFill, which is a clay-based system, is a low-cost, environmental friendly filter for safe drinking water. It's environmental friendly because it's made of clay, low cost, easy to make, and empowers the potter. Membrane filters for low-cost potable water. And various kinds of surveys are being done to understand water and its resource exploration. Good morning, sir. Of course, water and the environment go hand in hand. And this is the TerraFill, the clay-based, low-cost, environment-friendly filter for safe drinking water. और गुड साइंस से बना हुआ है। इसमें 15 लीटर की कैपेसिटी है और जब फिल्टर होकर पानी आता है तो वो IS 10500 स्टैंडर्ड से अप्रूव होता है एंड एवरी हाउस होल्ड इज गेटिंग वाटर एट लेस देन ₹1 per day. So sir, this is one initiative that we have taken after being inspired by your Make in India schemes, by your rural Yojana. Thank you so much, sir. You've been our inspiration. I'm Chandrasekhar, I'm representing the health sector. Our generic industry today in India is competing globally just because of the CSIR contribution, or HIV cocktail, or streptomyces which will cure the heart attacks, and also our diabetic molecule BGR 34, which is Ayurvedic based, but this will give additional support to diabetic patients to survive. So reduce the dose of insulin. So they are some of the contributions we have. जॉब को मिस करने के लिए
कि 30 करोड़ जो है पहले 3 महीने में टाइम ओवर हो गई थी कि रहता कि इसको आप किस सर ये कुछ टेक्नोलॉजी Scan completed. One new image found. थोड़ा सा टेबल है इसका प्रोसेसर 15 सेकंड Converting image 1 to text. Please wait. Reading file. 285 million people are estimated to be visually impaired worldwide. 39 million are blind and 246 have no vision. प्रीलोडेड होगा नहीं सर नहीं, ये सर। अभी स्कैन किया 39 उसके बाद ये कन्वर्ट किया 15 सेकंड्स लगा इसको कन्वर्ट करने के लिए उसके बाद इसको इंग्लिश में बोल दिया सर इसमें सर हाँ आप ये और भी कर They सकते हैं have सर long been unable to access इसे ये है सर documents थिंक like बिफोर यू एक्ट newspapers, ये मैं करता हूँ magazines, etc. ये काम करता है सर हाँ Brain is still the main. Going to go. Press 1 to Welcome to scan load. Long press 5 to start scanning. Start scan. Scan completed. One new image found. Converting image 1 to text. Please wait. Reading file. Well, think before you act. Once upon a time, a man and his wife had the good fortune to have a goose which laid a golden egg every day. Lucky though they were, they soon began to think they were not getting it ये सर fast हिंदी और enough. अलग भाषाओं के लिए यूज़ करना चाहते हैं They imagined that if the bird must be able to सीरीज क्या रहती है जो मिल्क मैग्नेटिज्म डिटेक्ट करता है 40 उसका जो मिल्क में मिसाल के यूरिया डिटर्जेंट विभिन्न प्रकार के एडिटिव्स मिल जाते हैं इसी एडिटिव्स हैंडमेड मशीन है करते हैं सभी लोगों को ट्रांसफर करना है आपने सजेस्ट किया था ना MSME, so that also falls under the MSME. CSCI works closely with several of the MSME sectors. And in the leather sector, which is offering large employment base for the sector. And currently we have about 2.53 million. We have the potential to increase it by adding another 2 to 2.5 million to the addition in the product dissemination. We also have our export and our leather sector's turnover from 12 billion to 27 billion. We are working closely with the tanning sector to make it environmentally sustainable. We have significant strides which have been made in this part of the Tamil Nadu region where it is 100% zero liquid discharge. All the tanners, they don't discharge anything outside their factory. And now we are significantly coming out with several technologies to other इसमें जो sectors. स्पोर्ट्स पर्सन की रिक्वायरमेंट होती है और उनके फिटनेस के लिए ज़रूरी होती है ऐसी चीज़ों का भी तो रिसर्च हो सकता है सिर्फ Indigenous chemicals. And now a moment with the innovators and the scientists of CSIR for a photo op with the chairman of CSIR, the Honorable Prime Minister of India, Shri Narendra Modi. और अब
माननीय प्रधानमंत्री जी वेब कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए देश के 5 शहरों के किसानों और इनोवेटर्स से बातचीत करेंगे। मिनिस्टर ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी एंड अर्थ साइंसेज डॉक्टर हर्षवर्धन, ऑनरेबल मिनिस्टर ऑफ स्टेट फॉर साइंस एंड टेक्नोलॉजी एंड अर्थ साइंसेज श्री YS चौधरी और DG CSIR एंड सेक्रेटरी DSIR डॉक्टर गिरीश साहनी का। प्रगति की भोर हो चुकी है, विकास का सूरज दमक रहा है। आज एक बार फिर राष्ट्र साक्षी बनेगा। विकास सूरज की छत्र छाया देश के खेतों में अपना आशीर्वाद बरसाएगी। आज माननीय प्रधानमंत्री जी के कर कमलों द्वारा मेडिसिनल और एरोमेटिक प्लांट वेराइटीज़ राष्ट्र को समर्पित की जाएंगी। माननीय प्रधानमंत्री जी आज इन 5 केंद्रों में राज्य भर से बड़ी संख्या में उत्साहित किसान जन किसान मेलों में एकत्रित हुए हैं। आज सारा दिन वहाँ बहुत सारी एक्टिविटीज़ चलेंगी, टॉक्स, डिमॉन्स्ट्रेशन, प्रशिक्षण इत्यादि। ये किसान जन इन किस्मों की पैदावार के बारे में प्रशिक्षण भी प्राप्त करेंगे। तो सबसे पहले शुभ शुरुआत करते हैं शुभ की शगुन हल्दी से। माननीय प्रधानमंत्री जी से विनम्र निवेदन है कि कृपया सिम पीताम्बर राष्ट्र को समर्पित करें। इसे CSIR CMAP ने विकसित किया है। ये हल्दी की उन्नत किस्म है और बहुत कम समय में बहुत ज़्यादा पैदावार देती है। इससे किसानों को 1 लाख रुपए प्रति हेक्टेयर आय होगी। बहुत बहुत धन्यवाद माननीय प्रधानमंत्री जी। अब हम चलते हैं हैदराबाद, जहां के लाभान्वित किसान माननीय प्रधानमंत्री जी से बातचीत करेंगे। ओवर टू हैदराबाद। किसान माननीय प्रधानमंत्री जी से बातचीत करेंगे। ओवर टू हैदराबाद। किसान माननीय Thank you, sir. Welcome to Hyderabad. Welcome to the farmers' meet being organized on the sprawling campus of Indian Institute of Chemical Technology. There are almost about 250 farmers who have gathered here from both the states of Telangana and Andhra Pradesh. We also have in our midst the Principal Secretary, Government of Telangana, Department of Agriculture, Mr. C. Parthasarathi. May I now request Mr. Parthasarathi to hand over the new variety Sim Pitambar as you dedicate it to the nation, to the farmers who have come from both Telangana and Andhra Pradesh. Thank you, sir. Sir, we have a farmer who has come all the way from Paderu in Visakhapatnam district of Andhra Pradesh. He is a tribal farmer. And may I now request you to kindly interact with him on his farming activity. माननीय प्रधानमंत्री जी वहाँ पर किसान हैं। माननीय प्रधानमंत्री जी वहाँ पर किसान हैं। भंजू बाबू, आप क्या करते हैं? किस फसल में ज्यादा आपने रुचि ली, क्या नया किया? भंजू बाबू गारू प्रधानी। किस फसल में ज्यादा आपने रुचि ली, क्या नया किया? भंजू बाबू गारू प्रधानी। किस फसल में ज्यादा आपने रुचि ली, क्या नया किया? గౌరవ ప్రధానమంత్రి గారికి నమస్కారములు। గౌరవ ప్రధానమంత్రి గారికి నమస్కారములు। నేను ఆదివాసీ గిరిజన జాతికి చెందినటువంటి పసుపు రైతును, ఆదివాసీ విశాఖపట్నం జిల్లా పాడేరు మండలం పసుపు రైతును, ఆదివాసీ విశాఖపట్నం జిల్లా పాడేరు మండలం పసుపు రైతును, ఆదివాసీ ప్రస్తుతం మాకు మేము సాధారణ వంగడాలతోనే ఈ పసుపు వ్యవసాయం చేస్తూ ఉన్నాము। మాకు సీమేపీ వారి ఆధ్వర్యంలో అధిక దిగుబడినిచ్చేటువంటి కొత్త వంగడాలని రమ్మని చెప్పడం జరిగింది। అది తెలుసుకొని మేము సీమేపీ వారు ఆధ్వర్యంలో హైదరాబాద్ రావడం జరిగింది। సీమేపీ వారు అందించేటువంటి కొత్త వంగడాలు ఇచ్చినట్లయితే మేము అధిక దిగుబడులు సాధించి అందులోనూ అధిక ఔషధ గుణాలను కూడా తెలపడం జరిగింది। అది ఇచ్చినట్లయితే మా జీవన ఉపాధులు బాగుపడతాయని ఆశిస్తున్నాం సార్। Sir, he is saying he comes from a tribal area in बाहर निकले,
गांव वाले, परिवार वाले सब आपकी मजाक उड़ाते होंगे शुरू में, तो कहते होंगे ये क्या कर रहे हो, जो अपना पहले करते थे वही अच्छा है, नया नया क्या कर रहे हो, कहते होंगे भूखे मरेंगे बच्चे, ऐसा नहीं कहा, करते थे वही अच्छा है, नया नया क्या कर रहे हो, कहते होंगे भूखे मरेंगे बच्चे, ऐसा नहीं कहा। ప్రధానమంత్రి అడుగుతున్నారంటే అందరూ మిమ్మల్ని నవ్వులు పాలు చేయట్లేదా, ముందు ఏదైతే వెరైటీ చేస్తున్నావో ఆ వెరైటీ వల్లనే మనకు లాభం చేకూరుతుంది కదా, ఇప్పుడు ఈ కొత్త వెరైటీ గురించి మీరు చేసే మన వాళ్ళందరూ నష్టపోతారంటూ ఎవరు మిమ్మల్ని అవహేళన చేయలేదంటూ అడుగుతున్నారు. ఇప్పటిదాకా మాకు మేము చేస్తున్నటువంటి వెరైటీలో చేస్తున్నాం సార్, కానీ ఇప్పుడు దాకా ఇటువంటి విషయాలు మాకు ఎవరు చెప్పలేదు సార్. ఇప్పుడు దాకా కొత్త వంగడాలని మేము ఇప్పుడు దాకా చేయలేదు సార్. Sir, he's saying that he comes from a tribal area and from a tribal family in Paderu in Visakhapatnam. So far he used to cultivate the local varieties which were available in that area. Now that the CMAP has educated him on the new variety that you have just launched, CIM Pitambar, and he says that if they give us more technology and more education about this particular variety, I will go back to my farmland when the cultivation season starts in June and July. I will definitely cultivate and will try to benefit the fruits of the research done by the CMAP. As far as the people who surrounding areas are concerned, they have never discouraged me. They always encouraged me, and I have reaped benefits. And I also have a farmer, sir, who has come from a drought-prone area in Kurnool district of Andhra Pradesh. Earlier he used to grow various other crops, but ever since the CMAP had given him Ashwagandha, which is a new variety, now he started reaping benefits to an extent of 10,000 to 15,000 per hectare every year. Now I request you, sir, kindly interact with him. Per hectare every year. Now I request you, sir, kindly interact with him. Per hectare every year. गजेंद्र गारू, गजेंद्र गारू सर नमस्ते. नमस्ते गजेंद्र गारू सर नमस्ते. नमस्कारम सर. नमस्ते नमस्कारम नमस्कार नमस्कारम नमस्कारम सर. नमस्कारम नमस्कार नमस्कारम. बताइए अश्वगंधा में क्या कर रहे हैं गजेंद्र, बताइए. సార్ నేను కర్నూలు జిల్లా నుంచి వచ్చాను. మాది ఎమ్మినూరు మండలము, పనుకులదిన్నె విలేజ్. మేము ఇంతకుముందు తరచుగా మాకు వర్షపాతం చాలా తక్కువ. మేము సాధారణమైన పంటలు వేస్తూ ఉండేవాళ్ళము, జొన్నలు, సజ్జలు, కందులు, శనగలు, వేరుశనగ ఇలాంటివి. ప్రతి సంవత్సరం మాకు నష్టాలు వస్తూ ఉండేవి తరచుగా. దీనికి తాటుగా మేము కొంతమంది మా మిత్రులతో కలిసి CMAP హైదరాబాద్ వాళ్ళ దగ్గరకు వచ్చి కలిశాము. వాళ్ళు మాకు అశ్వగంధ పోషిత అనే రకాన్ని మీరు వేసుకుంటే మీకు తక్కువ వర్షపాతంలో ఈ పంట పండుతుంది, బాగా వర్షానికి తట్టుకుంటుంది అని చెప్పారు. వాళ్ళ ద్వారా మేము అశ్వగంధ సాగు చేస్తున్నాము. గత 6 సంవత్సరాల నుంచి ఈ పంట మేము సాగు చేస్తున్నాం సార్. మాకు మధ్యప్రదేశ్లో నీమచ్ అనే ఊర్లో మార్కెట్ కూడా చూపించారు, మార్కెటింగ్ కూడా చేసుకుంటున్నాం సార్. ఈ పంట వేసినప్పుడు అంటే మాకు మిగతా పంటల కంటే ఈ పంటలో కొంచెం బాగా ఉంది సార్. Sir, he's saying that he comes from a drought-prone area. Earlier he used to cultivate other varieties, but ever since the CMAP had given him Ashwagandha, he started cultivating that product, that variety, and then he started reaping benefits. Not only that, the CMAP had taken him to Madhya Pradesh and Rajasthan and also educated there, and also he is trying to take his produce to various other states, and he is reaping a benefit of 10 to 15,000 almost per hectare every year. And another achievement by the IICT, sir, the IICT has developed a pest control management which is indigenously designed by the scientists here by using synthetic pheromones, and these farmers will also be educated on that particular product today, sir. चलिए आपको बहुत बहुत बधाई. और हम राज्यों के हिसाब से अब अल्फ़ाबेटिकली आगे बढ़ेंगे. माननीय प्रधानमंत्री जी से अब हमारा आग्रह है कि कृपया खस की उन्नत वैरायटी सिम समृद्धि को राष्ट्र को समर्पित करें. ये CSIR CMAP द्वारा डेवलप वैरायटी है. 35 किलो तेल प्रति हेक्टेयर इससे निकलता है, और सबसे बड़ी बात कि इसे वेस्ट लैंड में उगाया जा सकता है. अतिरिक्त आय होगी 1 लाख रुपए प्रति हेक्टेयर. माननीय प्रधानमंत्री जी, अब हम कनेक्ट हो रहे हैं कडिलौर तमिलनाडु से, जहां के बेनिफिशियरी किसान आपसे बातचीत करेंगे.
Over to Kadula. हाँ, कडलूर के किसान बताइए आप लोगों ने क्या क्या किया है। सबको नमस्कार। तमिलनाडु कडलूर गांव से हम बोल रहे हैं। यहाँ ये गांव बहुत सुंदर बढ़िया गांव है। ये समुद्र के किनारे पर है। ये सुनामी से अफेक्टेड गांव है। यहाँ लगभग 2000 किसान लोग रहते हैं। ये कार्य के लिए लगभग 500 किसान लोग पधारे हुए हैं। मैं अब पहले माननीय कृषि विभाग के संयुक्त निदेशक से निवेदन करूंगा कि श्री माननीय प्रधानमंत्री की ओर से दिए गए समृद्ध वेटीवेर का किसान को लोगों का देने की कृपा करें। जी बहुत बहुत धन्यवाद जी। मैं माननीय प्रधानमंत्री जी से निवेदन करता हूं कि यहाँ हमारे किसान लोग मौजूद हैं, उससे आप बात करने की कृपा कीजिएगा। वणक्कम। आप लोग पहले नारियल, इतने बड़े नारियल की खेती करते थे, अब एक छोटा सा बारीक खस की खेती करने लगे हैं, तो कैसे काम कर रहे हैं? ஐயா மானனீய பிரதம மந்திரி கூறுகிறார், முதலில் பெரிய தேங்காய் பயன்படுத்தீர்கள், உற்பத்தி செய்தீர்கள், இப்போ சிறிய இந்த கஸ் உற்பத்தி செய்கிறீர்கள், எப்படி நீங்கள் உணர்கிறீர்கள்? ரொம்ப நல்ல லாபம் கிடைக்குது ஐயா. நல்ல எங்கள் ஊரில் இதனால் வாழ்வாதாரம் நிறைய இதாக இருக்குது. இப்போ நல்ல இதாக இருக்கும். कस से हमको अधिक लाभ मिल रहा है और इससे हम तो खुशी से काम करने के मौका मिल रहा है। बाजार कहाँ है आपका? बाजार कहाँ है? पानी की वजह से ये थोड़ा अच्छा फसल हो रही है। ये माल कौन खरीदता है? क्योंकि ये तो बहुत ही मार्केट எங்க இருக்குங்க ஐயா? மார்க்கெட் உலகம் பூரா மார்க்கெட் இருக்கு ஐயா. ஐயா वो वर्ल्ड पूरा मार्केट இருக்கு ஐயா. ஐயா पूरे संसार में इनका मार्केट होता है जी। कितने किसान होंगे जो इस काम में लगे हैं उस इलाके में? क्योंकि कम किसान हो गए तो शायद मार्केट की भी तकलीफ होगी, ज़्यादा किसान हो गए तो हो सकता है कि मार्केट की तरफ सुविधा हो जाए। உங்க பகுதியில் எத்தனை விவசாயிகள் வேலை செய்கிறார்கள்? குறைந்த விவசாயிகள் தான் மார்க்கெட் பண்ணுவதற்கு சிரமமா இருக்குமே. எங்கள் ஊரில் இப்போ 250 விவசாயிகள் இருக்குங்க ஐயா. இங்கே வேலை பார்க்குறவங்க வந்து 2000 விவசாயிகள் இருக்காங்க ஐயா. அதில் यहाँ लगभग 250 किसान लोग होते हैं, फिर भी इसमें 2000 लोग इस काम में लगे हुए हैं। और क्रॉप का सीजन कब होता है और मार्केट वाले कब पहुंचते हैं आपके पास? ஐயா இந்த சிஎஸ்ஐஆர் மார்க்கெட்டுகளை எப்போ வந்து உங்களை வந்து தொடர்பு கொண்டார்கள்? நாங்கள் இந்த விவசாயம் வந்து 15 வருஷமாக பண்ணிட்டு வரோம் ஐயா. இதில் வந்து இப்போ ஒரு 3 வருஷமாக எங்களுக்கு இதில் மார்க்கெட் பண்ணுறதுல கொஞ்சம் பிரச்சனை இருந்தது. இப்போ நாங்கள் சிஎஸ்ஆர் அணுகணும். அந்த சிமேப் அணுகுனப்போ அவங்க வந்து இதில் இந்த வேறு எடுத்துகிட்டு போயிட்டு ஆயில் இருக்கான்னு பார்த்தாங்க. ஆயில் இதில் கம்மியாக இருக்கிறதுனால வேறு ஒரு புதிய ரகத்தை எங்களுக்கு வந்து அறிமுகப்படுத்தி ஒரு 7 மாதத்துக்கு முன்னாடி புதிய ரகத்தை அறிமுகப்படுத்தி இந்த ரகத்தில் ஆயில் நல்லா வரும், நீங்கள் நட்டு வைங்க அப்படின்னாங்க. திரும்ப நட்டு முடிச்சுட்டு அந்த இதை திரும்பவும் எடுத்துகிட்டு போயிட்டு அதில் ஆயில் செக் பண்ணாங்க. அதில் நல்ல ஆயில் ஈல்டு வர்றதுனால அந்த புதிய ரகத்தை இப்போ ஒரு 15 விவசாயிகளுக்கு வந்து 15 விவசாயிகளுக்கு அறிமுகப்படுத்துகிறாங்க ஐயா. இப்போ எங்களுக்கு வந்து லாபம் இதில் வந்து 2 மடங்காக கிடைக்கிறதுக்கு வாய்ப்பு இருக்குது ஐயா. पहले हमको अधिक लाभ नहीं मिल रहा था। जब सीएसआर से हमको संपर्क मिला तब उन्होंने नया तरीका हमको बताया है, कस से कैसे अधिक तेल निकालना है। अभी हमने ये सीख ली है, अभी उसके अनुसार हम तेल अधिक निकालते हैं। अभी हमको 2 गुना लाभ मिल रहा है। आप लोग अगर 2000 किसान है और इतना आपका प्रोडक्ट हो रहा है तो आप लोगों को लगता है कि इसका एक कॉमन ब्रांडिंग करना चाहिए, एक नाम तय करना चाहिए, उसी नाम से मार्केट में आना चाहिए,
ताकि एक उसकी पहचान बन जाएगी और देश में किसी को और दुनिया में भी इस प्रोडक्ट को लेना होगा तो उसका ध्यान रहेगा। ஐயா, நீங்கள் வந்து கிட்டத்தட்ட 2000 விவசாயிகளோட இந்த உற்பத்தி பண்ணுகிறீர்கள். இதை வந்து கஸ் என்ற வெட்டிவேர் என்ற பெயரில் நீங்கள் வந்து மார்க்கெட் பண்ணுறீங்க. இதுக்கு வேறு ஒரு பெயர் கொடுத்து நீங்கள் உலகம் முழுவதும் பண்ணீங்கன்னா ஒன்றும் நல்லா இருக்குமே. அதுக்கு உங்களுடைய யோசனை என்ன? இது உலகம் பூரா வெட்டிவேருங்கிற பேரில் தான் ஐயா இது போயிட்டு இருக்கு. ஐயா தான் பிரதமர் ஐயா, நீங்கள் ஏதாவது ஒரு ஐடியா சொன்னீங்கன்னாக்கா எங்களுக்கு ஒரு நல்ல விவசாயிகளுக்கு நல்லா ஊக்கமாக இருக்கும். எங்களுக்கு நிறைய உதவி பண்ணணும்னு நாங்கள் கேட்டுக்கிறோம் ஐயா. பிரதமர் ஐயா எங்களுக்கு கொஞ்சம் உதவி பண்ணி இந்த இது நாங்கள் இதுவரையும் கரண்ட்டு இல்லாமல் வெறும் ஆயில் மோட்டர் வச்சு தான் நாங்கள் விவசாயம் பண்ணிக்கிட்டு இருக்கோம். எங்களுக்கு கரண்ட்டு சப்ளை கொஞ்சம் உதவி பண்ணிங்கன்னா எங்களுக்கு ரொம்ப உங்களுக்கு உங்கள் काल விழுந்து கும்பிடுவோம் ஐயா. पूरे अभी पूरे संसार में वेटीवेर नाम से ही एक कस के नाम से ही हम ये मार्केट कर रहे हैं. मेरी प्रार्थना है कि आपकी एक नया नाम थोड़ा सुझाव दीजिए, निर्णय लीजिए. और ये भी ये प्रार्थना है, हम यहाँ बहुत गरीबी में जीवन बिता रहे हैं, आप और सहायता देंगे तो और भी बढ़िया होगी, अच्छी होगी. अच्छा, आप लोगों के खेत समंदर से कितने दूर है? आपके खेत और समंदर के बीच में कितना अंतर है? ஐயா, உங்களுடைய விவசாய நிலங்கள் கடற்கரையிலிருந்து எவ்வளவு தூரத்தில் இருக்கிறது? ஓ, கடல்லேருந்து ஒரு 100 மீட்டர்லேருந்து 2 கிலோमीटर வரையும் இருக்கு ஐயா. वो समुद्र से 100 मीटर से 2 किलोमीटर दूरी तक होती है. आप लोगों ने कभी समंदर में सीवीड की खेती की तरफ ध्यान दिया है? क्योंकि भविष्य में सीवीड की खेती जो पानी में होती है और किनारे पर होती है, भविष्य में सीवीड दवाइयों के लिए बहुत काम आने वाला है. उसका कोई काम होता है क्या आपके यहाँ? ஐயா, உங்களுக்கு இது எதிர்காலத்தில் இது அதிக தண்ணீர் இருக்கும் பொழுது கடற்கரையில் இதை வந்து ஒன்று அதிகமாக உங்களுக்கு உற்பத்தி பண்ணுவதற்கு ஐடியா இருக்கா? இன்னும் அதிகமாக எங்களை இந்த இந்த விவசாயத்தில் வந்து இந்த விவசாயம் வந்த பிறகு தான் எங்களுடைய மக்களுடைய வாழ்வாதாரம் உயர்ந்திருக்கு. இதை நம்பி தான் இந்த ஊரில் ஒரு 15 கிராமத்தில் உள்ள விவசாய கூலி தொழிலாளிங்க பொழைச்சிட்டு இருக்காங்க. இங்கே மட்டும் ஒரு நாளைக்கு இந்த ஏரியாவில் இந்த கிராமத்து விவசாயத்தை நம்பி ஒரு 3000 விவசாய கூலி தொழிலாளிங்க இருக்காங்க. இவங்க இந்த விவசாயம் என்ன பெருக பெருக இந்த மக்களுக்கு வாழ்வாதாரம் உயரும் ஐயா. ये कस कारा पानी और पानी भराव जगह में भी ये उगता है. यहाँ के लोग किसान लोग इसके आगे बढ़ने का कोशिश कर रहे हैं. ज़रूर भविष्य में हम ये आगे बढ़ेंगे जी. चलिए, मेरी सभी किसानों को बहुत बहुत शुभकामनाएं और आप नए नए प्रयोग कीजिए, औरों को भी नए नए प्रयोग करने के लिए सिखाइए. धन्यवाद. रोज सेंटेड जिरेनियम CSIR IIIM द्वारा विकसित की गई है. माननीय, आपसे आग्रह है कि कृपया इसे भी राष्ट्र को समर्पित करें. इसका उपयोग कॉस्मेटिक्स और परफ्यूम इंडस्ट्री में होता है. इसे जम्मू और कश्मीर में गर्मियों में उगाया जा सकता है. मुनाफा होगा करीब 2 लाख रुपए प्रति हेक्टेयर. 5 सालों में 2000 किसान इससे लाभान्वित होंगे. बहुत बहुत धन्यवाद माननीय प्रधानमंत्री जी. अब हम चल रहे हैं जम्मू, जहां के लाभान्वित किसान श्री सुभाष चंद्र और श्री भारत भूषण माननीय आपसे बातचीत करेंगे. ओवर टू जम्मू. जी नमस्ते सबको. नमस्कार माननीय प्रधानमंत्री महोदय जी, आपका जम्मू में हार्दिक अभिनंदन है. माननीय प्रधानमंत्री जी, हमारे जो प्रगतिशील किसान हैं आपसे बात करने को उत्सुक हैं. बताइए, कौन पहले बात कर रहा है? सुभाष चंद्र जी, इनका ताल्लुक किश्तवाड़ से है. सुभाष जी बताइए. माननीय प्रधानमंत्री जी नमस्कार. मैं किश्तवाड़ से हूं और हम अपने बागों में मैरोमेटिक्स प्लांट और मेडिसिनल प्लांट उगाते हैं.
पहले क्या करते थे, वहाँ से यहाँ शिफ्ट कैसे हुए, किस प्रकार से बदलाव आया? पहले से हम वहाँ मक्की और दूसरी अन्य फसलें लगाते थे, जिससे हमें ज़्यादा लाभ नहीं हुआ। CSIR के IIM इंस्टीट्यूट जम्मू से मिलकर हमने कुछ जड़ी बूटियाँ और सुगंधित पौधों की खेती करनी जो है वो शुरू की है। सैफरान वगैरह भी हम अपने बागों में लगाते हैं, जिनसे हमें काफ़ी लाभ हुआ है। आपको मालूम है ये सुगंधित जो फ्रेगनेंसी की चीज़ें हैं उसका 40% ग्रोथ बताते हैं। बहुत बड़ा मार्केट खड़ा हुआ है हिंदुस्तान में। क्या आपको भी उसका लाभ मिल रहा है कि आप वहीं के वहीं रह गए? नहीं माननीय प्रधानमंत्री जी, हमें काफ़ी लाभ मिला है। CSIR के साथ जुड़कर हमें काफ़ी लाभ मिला है, और जो ये नई नई चीज़ें हमें हर दिन बताते हैं उनसे काफ़ी लाभ मिला है हमें। और ये चीज़ें जो हम और कोई किसान है जो इस दिशा में ज़्यादा रुचि ले रहे हैं? जो हमारी पुरानी फसलें हैं जो हम अपनी बाग में लगाते थे, हाँ बहुत से किसान हैं हमारे, कम से कम 200-250 फार्मरों का एक समूह है। किश्तवाड़ में कितने गांवों में समूह में एक सुभाष जी किश्तवाड़ में कितने गांवों में किसान इस प्रकार के पौधों की ओर शिफ्ट कर गए होंगे? तकरीबन इस वक्त 20 गांव ऐसे हैं जो IIM की मदद से पिछले साल दिए गए 30,000 प्लांट जो हैं वहाँ पे लग चुके हैं। और जड़ी बूटियाँ, चूँकि हमारे बागों के खेत हैं, तो बागों के खेतों में ये दूसरी फसलें लगाना संभव नहीं है, इसलिए हमें छायादार पौधों को लगाना जो है वो ज़्यादा ये बताया गया है CSIR के यहाँ विशेषज्ञों से। अच्छा, और भी कोई आपके साथी हैं कुछ कर रहे हैं, बताइए कौन है? हमारे दूसरे साथी हैं भारत भूषण जी, जिनका ताल्लुक डोडा भद्रवाह से है। भारत जी बताइए। माननीय प्रधानमंत्री जी नमस्कार। मैं पिछले 6 साल से लेवेंडर की खेती कर रहा हूँ। पहले मैं मक्की की खेती करता था। जब 2010 में IIM CSIR जम्मू ने भद्रवाह में एक किसान मेला रखा था, तब हमें पता चला कि हमें लेवेंडर से मक्की के मुकाबले में ज़्यादा फ़ायदा हो सकता है। तब मैंने 2 कनाल में लेवेंडर की खेती शुरू की थी, और जो अब 2 साल के बाद हमें उसका फ़ायदा मिला तो वो मक्की से तकरीबन 4 गुना ज़्यादा था। उसके बाद हमने लेवेंडर की खेती बढ़ा दी और आज तकरीबन 2-2.5 हेक्टेयर में लेवेंडर लगा दिया है। कोई बीमारी आती है, कभी बीमारी का अनुभव हुआ 5-6 साल में? बीमारी आती है जब उसमें घास वगैरह ज़्यादा लग जाता है, लेकिन IIM के डॉक्टर साहब वहाँ पे आए थे, उन्होंने देखा कि इसमें जो ये पौधे सूख रहे हैं ये घास की वजह से सूख रहे हैं। आप ये घास वगैरह इसमें मत रहने दो, अच्छी तरह से साफ़ करो, उसके बाद हमारे पौधे ठीक ही रहे। प्रोसेस वही होता है कि कच्चा माल चला जाता है? नहीं, वहीं पे करते हैं। पहले हमें बहुत दिक्कत आई, 4-5 साल हमें बड़ी दिक्कत आई, लेकिन अब IIM CSIR जम्मू ने हमारे लिए एक तेल निकालने की मशीन जो डिस्टिलेशन यूनिट है वो भेज दिया था इस साल, और हमने आसानी से फ्री खर्चे पर, कोई खर्चा भी नहीं इन्होंने लिया, और हमें आराम से लेवेंडर का तेल निकाल दिया। ये जो नौजवान है किसानों के बेटे, उनको कोई रुचि है क्या खेती में, और वो देखने के लिए आते हैं कि आपके यहाँ कि क्या क्या नया किया है, कैसा नया किया जा सकता है, सीखना चाहते हैं क्या? बहुत सारे लोग आते हैं। पहले तो मैंने ही ये काम शुरू किया था, लेकिन 2 साल के बाद जब मुझे उसमें फ़ायदा हुआ तो और भी बहुत सारे किसान मेरे साथ जुड़ गए हैं, और इस साल तो बहुत सारे इतने किसान हैं कि जो लेवेंडर लगाने के लिए मुझे बोलते रहते हैं, और हमने IIM CSIR जम्मू से
राब्ता रखा है और जो मेरे पास अपनी नर्सरी में पौधे हैं वो मैं उन लोगों को दूंगा, जो हमें कमी होगी वो हम जम्मू ट्रिपल IIM से साथ साथ नर्सरी का भी काम करते हैं। जी हाँ सर, मैं नर्सरी का भी काम करता हूँ। 6 साल का एक्सपीरियंस है मुझे। पहले तो इसमें कामयाबी नहीं थी, लेकिन अब आस्ता आस्ता इसमें मैं कामयाब हो चुका हूँ। ट्रिपल IIM से राब्ता है और ये हमें बताते रहते हैं। आपकी अपनी ज़मीन कितनी है? अपनी ज़मीन अपनी ज़मीन 1 ही हेक्टेयर है, और जिसमें हमने पूरा लेवेंट्री लगा दिया है और बाकी लोगों को यही राय देते हैं कि लेवेंडर लगाओ और बाकी लोगों को लगवा। हाँ जी, हाँ जी, पहाड़ी इलाका है, क्योंकि लेवेंडर पहाड़ी इलाके में ही कामयाब है, प्लेन जगह नहीं सर। नहीं तो पानी के लिए क्या करते हैं? पानी तो बह जाता होगा। इसमें पानी की ज़रूरत पड़ती नहीं सर। अगर इसमें पानी रुकेगा तो ये तबाह हो जाएगा, सूख जाएगा पौधा। तो आपको एकदम से हर प्रकार से वेदर के कारण, ज़मीन के कारण और पानी के कारण, तीनों प्रकार का नेचुरल बेनिफिट है। हमें बहुत सारा वहाँ पे बेनिफिट है, क्योंकि वहाँ का जो क्लाइमेट है बहुत अच्छा है। यहाँ से जो डॉक्टर साहिबान श्रीनगर ब्रांच से आए थे, क्योंकि जम्मू में तो लेवेंडर है नहीं, श्रीनगर में ब्रांच है, वहाँ पे लेवेंडर है। और वहाँ से डॉक्टर साहब वहाँ पे आए थे, उन्होंने देखा कि यहाँ का जो यहाँ की जो ज़मीन है वो बहुत अच्छी है। उन्होंने भी वहाँ के ज़मींदारों को राय दी कि आप यहाँ पे ज़्यादातर लेवेंडर ही लगाओ। चलिए भारत जी, आपका भूषण जैसा काम है, बहुत बहुत धन्यवाद आपको, और जम्मू कश्मीर के किसानों को भी बहुत बहुत शुभकामनाएं। धन्यवाद सर। बहुत बहुत धन्यवाद माननीय प्रधानमंत्री जी। अब हमारा आपसे अनुरोध है कि कृपया सिट्रोनेला और लेमन ग्रास, जो कि CSIR नीस्ट द्वारा विकसित की गई है, इन किस्मों को अपने कर कमलों द्वारा राष्ट्र को समर्पित करें। सिट्रोनेला परफ्यूम और दवाई में इस्तेमाल होता है, इससे उत्तर पूर्व के 400 किसान परिवार लाभान्वित होंगे। और लेमन ग्रास जो है वो उच्च तेल उत्पादकता वाली पैदावार है, 500 से अधिक किसान इससे लाभान्वित होंगे। आय होगी 25,000 से 45,000 रुपये प्रति हेक्टेयर हर साल। और अब हम चल रहे हैं उत्तर पूर्व में जोरहट आसाम, जहां के बेनिफिशियरी किसान अब माननीय प्रधानमंत्री जी से बातचीत करेंगे। ओवर टू जोरहट। जोरहट के किसानों को नमस्कार। नमस्कार, मैं नॉर्थ ईस्ट इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी जोरहट असम में हूँ, जहाँ पे एक किसान मेला चल रहा है। और इस किसान मेला में 500 किसानों के अलावा कृषि विभाग के कुछ वरिष्ठ अधिकारी मौजूद है। अब मैं असम कृषि विश्वविद्यालय के कुलपति डॉक्टर KM बुजुर्गबरुआ जी से आग्रह करूंगा कि वो लेमन ग्रास और सिट्रोनेला के 2 उन्नत पौधों का किसानों में वितरण करें। हमारे बीच काफ़ी किसान भाई है जो माननीय प्रधानमंत्री जी से बात करने के लिए काफ़ी इच्छुक है। अब मैं माननीय प्रधानमंत्री जी से निवेदन करूंगा कि वो हमारे बीच जो किसान मौजूद है उससे बातचीत करें। सर प्लीज। माननीय प्रधानमंत्री जी, मेरा आपको प्रणाम, और नीस्ट के सभी अधिकारी को प्रणाम, और मुझे मौका मिला कि आपसे पंडित जी बात आपकी करने का, जमीन इसके कितनी लिए है? बहुत बहुत धन्यवाद। जमीन, पंडित जी आपकी अपनी जमीन कितनी है? पहले क्या खेती करते थे, अब क्या करते हैं? मेरा लगभग 45 बीघा खेती है, और उसमें करीब 15 बीघा में मेरा धान लगा हुआ है, और करीब 4 बीघा में बनाना है, और 4 बीघा में पपाया है, और बाकी जो ज़मीन है जिसमें मैं वेजिटेबल उगाता था, और इससे पहले मैं थोड़ा ज़मीन में चित्रनला किया करता था, जो ओल्ड वेराइटीज़ था जिसे C2 कहा जाता था, और उसमें जो ऑयल एक्सट्रैक्शन का बात कहा जाएगा तो उसमें करीब 0.8% ऑयल आता था।
और अभी हम लोग का NIST ने डेवलप किया है एक नया वैरायटी चित्रनला C5, जिसका वेजिटेटिव ग्रोथ भी अच्छा है और इसमें बीमार का जो संभावना दिखाई देता है वो कम है। और पंडित जी पहले मुझे समझाइए, विश्वनाथ जी देखा जा रहा है वो 1.2%। अरे विश्वनाथ जी हमारी बात सुनिए, लगता नहीं हो आप किसान हो, आप तो साइंटिस्ट लगते हो जी। जी सर। क्या है, पहले कहीं सरकार में काम करते थे? क्या बोले? नहीं सर, पढ़ाई कंप्लीट करने के बाद 2000 से मैं कंटिन्यू क्या पढ़ाई किया? खेती में ही हूँ। क्या पढ़ाई किया आपने? 2000 से, हाँ। मैंने BSc किया सर, बोटनी मेरा मेजर था। अच्छा, इसलिए तो क्योंकि आपकी जो भाषा थी और जिन शब्द प्रयोगों को करते थे तो मुझे लग नहीं रहा था, लेकिन मुझे खुशी हुई कि आप पढ़ लिखने के बाद खेती में वापस गए, वरना ज़्यादातर लोग खेती के लिए पढ़ते तो भी हैं लेकिन फिर शहरों में भाग जाते हैं। आपने अच्छा किया पंडित जी, इसके लिए मैं आपको बधाई देता हूँ। और स्वयं इस विज्ञान को जानते थे और आपके पास जमीन थी और आपने प्रयोग किए। थैंक यू सर। तो लेबोरेटरी में जो प्रयोग होते हैं उससे ज़्यादा अच्छे प्रयोग आपने किए होंगे, क्योंकि आपके पास बेसिक नॉलेज भी था। हाँ, आपका एकेडमिक कोशिश एक्सपीरियंस कर भी रहे हैं था सर। और मेरा जो लैंड है एक्चुअली थोड़ा एलिफेंट इफेक्टेड एरिया में पड़ता है, जहां लार्ज स्केल में बनाना नहीं किया जा सकता है, रिक्सेबल है। तो ये जो चित्रनला प्लांट है वो इजीली ग्रो किया जा सकता है और इससे एलिफेंट से किसी तरह का डैमेज नहीं होगा और एलिफेंट इसे खाता नहीं। तो इसके पंडित जी आप स्वयं इस विषय पर पढ़े हैं। क्या आसाम में चाय में इस प्रकार का नया जेनेटिकल चेंज ला करके कोई नई चाय की ब्रांड दुनिया के सामने हम ला सकते हैं? क्या कभी सोचा है? किया तो जा सकता है और चाय का जो वो है वो तो ज़्यादा है, लेकिन मैंने कभी टी ग्रो नहीं किया, मैंने सिर्फ देखा ही है, क्योंकि चाय काफ़ी जगह में किया जाता है यहाँ पर। नहीं, कोई वैज्ञानिक तरीके से हम कोई नई वैरायटी दुनिया को दे सकते हैं क्या? क्योंकि आसाम ने दुनिया को चाय तो दी, लेकिन अब चाय में भी बदलाव की आवश्यकता लगती है, नयापन चाहिए उसमें, क्योंकि लोग अब नई नई फ्लेवर पसंद करते हैं। नहीं, डेफिनेटली, क्योंकि चाय में बदलाव लाने के लिए एक तो हम लोग का जो जात होना चाहिए वो अच्छा क्वालिटी का हो, क्योंकि हम लोग का जो भी चाय लगा हुआ है, जो रेनी सीजन में इसका प्रोडक्शन आता है और काफ़ी बीमारी ग्रस्त हो जाता है, जिसके कारण काफ़ी कुछ केमिकल और पेस्टिसाइड वगैरह डालना पड़ता है। और यदि किसी कारण से ऐसा ब्रीड बनाया जाए कि चाय का जो हम लोग केमिकल हो या फिर जो पेस्टिसाइड हम लोग डालते हैं उसको यदि रिड्यूस किया जाए और केमिकल के जगह यदि हम लोग ऑर्गेनिक मैन्योर डाला जाए, जैसे वर्मी कंपोस्ट हुआ, ऐसे कुछ करके यदि डाला जाए, तो मेरे ख्याल से जो सॉइल का हेल्थ कंडीशन है वो भी बहुत अच्छा होगा और इससे जो प्रोडक्टिविटी होगा वो भी कुछ अच्छा निकलेगा। और जो हम लोग का बाहर में देखा जाता है कि यदि ऑर्गेनिक टी है तो इसका काफ़ी कुछ अच्छा प्राइस है, लेकिन यदि एक केमिकल यदि ज़्यादा केमिकल उसमें निकलता है तो उसे रिजेक्ट कर दिया जाता है और वो इंडिया में कंजम्पशन करने के लिए बाउंड हो जाता है। तो हम लोग केमिकल ज़्यादा डालते हैं, कंजम्पशन इंडिया में पंडित जी आपके साथ और कौन किसान है? लेता नहीं। और है सर, और एक है सर किसान। कौन है बताइए? नमस्ते सर, मैं अक्षय शर्मा जी। जी अक्षय जी नमस्ते। मेरी खेती है अपनी, परिवार की मेरी अपनी ज़मीन है। नमस्ते सर। मेरी अपनी पारिवारिक ज़मीन है सर, उसमें 40-45 बीघे करीब, उसमें से 30 बीघे जो है मेरी खेती होती है धान की और 15 बीघा जो है करीब टीला वाली ज़मीन है, उसमें काफ़ी कुछ मैं कर नहीं पाता था। तो अभी 2 साल पहले मुझे यहाँ हमारे बगल में एक किसान मेला लगता है, उसमें पता चला मुझे लेमन ग्रास और सिट्रोनेला के बारे में। तो मुझे लेमन ग्रास में थोड़ा अच्छा लगा, उसकी सुगंध अच्छी लगी और तो कुछ पता नहीं।
तो उसको मैं अभी 2 साल से धीरे धीरे प्रोपेगेट कर रहा हूँ। करीब 5 बीघे में मैं उसको ऑलरेडी बढ़ा चुका हूँ। तो अभी पिछले साल 3 महीने पहले मुझे बताया कि अभी एक हम लोग नई वैरायटी डेवलप कर रहे हैं, आप उसके ऊपर ज़्यादा कोशिश कीजिए। तो मैं उस पर कोशिश कर रहा हूँ। तो पहली अभी तक मेरी कोई क्रॉप आई नहीं है। हालांकि मैंने सैंपल जब यहाँ दिया था तो डॉक्टर भट्टाचार्य जी जो अभी हमारे पहले यहाँ एरोमेटिक डिपार्टमेंट के हेड थे, उन्होंने बताया भाई आपके यहाँ तेल अच्छा है और इसकी आपकी रिकवरी भी अच्छी आएगी। तो मैं अभी उसी को बढ़ा रहा हूँ सर। उसके जो प्रोसेसिंग होने के बाद उसका कोई मार्केटिंग की पहचान हुई है लोगों में? जी सर, मार्केटिंग अभी यहाँ पर हमारे पास ऐसा कोई सुविधा नहीं मिली है, लेकिन मुझे कल ही बताया यहाँ एक डॉक्टर साहब ने कि हम लोग एक कोशिश कर रहे हैं CSIR की तरफ से कि एक कोऑपरेटिव बना करके हम लोग जितने भी किसान हैं सबका तेल एक जगह ला करके उसकी होमोजिनिटी टेस्ट करके उसका सारे पैरामीटर्स टेस्ट करके उसको एक सेंट्रली हम लोग सेल कर सकें, जिसकी कि हमें कीमत अच्छी मिले। क्योंकि मेरे एक दोस्त ने बताया था कि इसकी कीमत 1200 रुपये आनी चाहिए, लेकिन जब मैंने खबर करी तो मुझे 700-750 रुपये की खबर मिली। तो मैंने कल जब यहाँ बात करी तो डॉक्टर साहब ने कहा कि हम लोग कोशिश कर रहे हैं, शर्मा जी आप लोग सब मिल करके साथ में रहिए, हम आपके साथ पूरी एक कोऑपरेटिव बना करके ही आगे काम करेंगे। चलिए अक्षय जी, आपको बहुत शुभकामनाएं हैं और पूरे देश में आपकी ये महक फैले, क्योंकि लेमन ग्रास की महक कॉमन मैन को बहुत पसंद आती है। और आजकल तो साबुन बनाने वाले जो होते हैं वो इसी का सबसे ज़्यादा मार्केटिंग करते हैं, तो स्वाभाविक रूप से उसका मार्केटिंग से संभावनाएं बहुत है। बहुत बहुत धन्यवाद। अब हम आपसे आग्रह करते हैं माननीय कि कृपया कैला लिली और जरबेरा दोनों ही CSIR IHBT द्वारा विकसित हैं, कृपया इनको राष्ट्र को समर्पित करें। कैला लिली पहाड़ी इलाकों के लिए बहुत अनुकूल है। अतिरिक्त आय होगी 2 साल में 11.5 लाख रुपए प्रति एकड़। जरबेरा सजावटी फूल का पौधा है। कमर्शियल पॉइंट ऑफ व्यू से विश्व में इसका 5वां स्थान है। 5 किस्में इसकी विकसित की गई हैं। बहुत बहुत धन्यवाद माननीय प्रधानमंत्री जी। पालमपुर हिमाचल प्रदेश के लाभान्वित किसान अब आपसे बातचीत करेंगे। ओवर टू पालमपुर। नमस्कार, हिमालय जैव संपदा प्रौद्योगिकी संस्थान पालमपुर से आप सभी का स्वागत है, अभिनंदन है। इस समय हमारे साथ सूबे के सैकड़ों किसान मौजूद है। कृषि विभाग के अधिकारी, बागवानी विभाग के अधिकारी मौजूद है। मेरा निवेदन रहेगा IHBT के वरिष्ठ प्रधान वैज्ञानिक डॉक्टर RK सूद से, जो माननीय प्रधानमंत्री जी ने आज पुष्प प्रजाति विकसित करके किसानों को दी है, उसे प्रदान करें। हमारे शिशु पटियाल जी जो बहुत ही प्रगतिशील किसान हैं हिमाचल प्रदेश के, और इनके साथ हैं लाहौल स्पीति के बहुत ही प्रगतिशील किसान यार्की जी। माननीय प्रधानमंत्री जी, हमारे किसान बागवान आपसे बातचीत करने के लिए बहुत उत्सुक हैं। बताइए किसान भाइयों, अपना अनुभव बताइए। मैं शिशु पटियाल हूँ जी। पालमपुर से लगभग 10 किलोमीटर दूर 6000 वर्ग मीटर की क्षेत्र में खेती कर रहा हूँ फूलों की, जहाँ पे मैंने 4 पॉली हाउस भी स्थापित किए हैं, जिसमें जरबेरा और एलेस्टोमेरिया लगाया है, और साथ खुले में खेती कर रहा हूँ जिसमें गेंदा, गुलाब, ग्लैडलस और लिली के पौधे लगाए हैं। लेकिन आपकी लीची को तो परेशानी होती है, बोले बंदर बहुत आते हैं। नहीं जनाब, जिस क्षेत्र में मैं खेती कर रहा हूँ वहाँ बंदर कम हैं, और दूसरा फूलों की खेती में बंदर जो हैं अधिक नुकसान नहीं पहुँचाते। नहीं, कहते थे पहले तो पठानकोट से लेकर के इस आपके पूरे बेल्ट पर लीची की खेती को परेशान करते थे बंदर, यही तो चर्चा हुआ करती थी। जनाब, बंदर मक्की और धान इत्यादि की खेती को और जो खाई जाने वाली चीज़ें हैं उनको तो क्षति पहुंचाते हैं, लेकिन फूलों में अभी वो नहीं करते, क्योंकि फूलों में हम थोड़ा छिड़काव भी करते हैं दवाओं का, जिस वजह से शायद वो दूर रहते हैं। अच्छा, दवाओं से बंदर तो दूर रहते, इंसान का क्या होगा? किसान के लिए जो है जी छिड़काव, हम ये
IHBT के वैज्ञानिकों की सलाह से करते हैं, इस वास्ते वो इतना अधिक नहीं होता जो आम आदमी और फसलों के लिए क्षति करने वाला हो। चलिए, लाहौल स्पीति के कौन किसान हैं आपके साथ? आदरणीय प्रधानमंत्री जी को मेरा नमस्कार। मैं रणबीर सिंह यार्की डिस्ट्रिक्ट लाहौल स्पीति से बिलोंग करता हूं। सर, पहले हमारे ज़िले में आलू और मटर की परंपरागत खेती होती थी, लेकिन आज हम CSIR IHBT के माध्यम से लिलियम जैसे कट फ्लावर की खेती कर रहे हैं और उसको आज़ादपुर दिल्ली, ये गाज़ीपुर दिल्ली में मार्केट कर रहे हैं। मार्केट के लिए क्या अवस्था है आपके? तो आलू इतने होते थे लेकिन पहुंचाना बड़ा मुश्किल हो जाता था। अब इसकी खेती में गए हैं तो क्या स्थिति है? सबसे बड़ी चिंता तो वहाँ से। जी सर, शुरू में जब हमने फ्लोरिकल्चर का शुरुआत किया तो बसों में हमें ट्रांसपोर्ट करना पड़ता था, तो कई बार बसें ओवर क्राउडेड आती थी, हमें बसों में स्पेस नहीं मिल पाता था। लेकिन रोज़ दिक्कतों से निजात पाने के लिए हमने इसके साथ साथ कॉलीफ्लावर और एक्जोटिक वेजिटेबल भी ग्रो कर उसे दिल्ली के मार्केट में भेजना शुरू कर दिया, ताकि जो एक स्मूथ ट्रांसपोर्ट नेटवर्क जो है हम डेवलप कर पाएँ, जिसमें कि तो रणबीर आप पहले से ही गाड़ियों में हमारा पहले फौज में थे क्या? 75% स्पेस। रणबीर आप पहले से ही खेती करते हो कि पहले फौज में थे? फौज में थे पहले? जी नहीं, मैं नहीं, फौज में नहीं था सर। मैं मैट्रिक के बाद खेती करता था। हाँ। कितने किसान हैं? क्योंकि वहाँ तो बहुत कठिन है खेती करना। लाहौल स्पीति इलाके में वो आलू पर ही गुजारा करते थे आप लोग तो। हाँ जी, ज्योग्राफिक कंडीशन तो काफ़ी हमारे टफ हैं, जिसमें कि हमें 12 महीने में 6 मास तो जी बर्फ़ की चादरों से हमारा ज़िला जो है ढका रहता है। वर्किंग सीजन सिर्फ 4 ही मंथ मिल पाते हैं जी हमें। चलिए, मेरी आप सब किसानों को बहुत बहुत शुभकामनाएं हैं। और अभी कार्यक्रम में काफ़ी मैं बातें करूंगा, आपको से भी चर्चा करने का मौका मिलेगा। मुझे अच्छा लगा आज देश के अलग अलग भूभाग के सभी किसान बंधुओं से बातचीत करने का मौका मिला। मैं सभी किसानों से आग्रह करूंगा कि नई पीढ़ी को हम किसानी में लाएं, नए प्रयोग करें, नए विचारों को स्वीकार करें, वैज्ञानिक पद्धतियों का हम प्रयोग करने का प्रयास करें। यही मेरी आप सबसे अपेक्षाएं हैं। बहुत बहुत शुभकामनाएं। धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद माननीय प्रधानमंत्री जी, देश के किसानों को ये कीमती सौगात भेंट करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। After the web conference, the Honorable Prime Minister will now be conducted to the plenary hall of Vigyan Bhavan for the main celebrations of the Platinum Jubilee of CSIR. Scientists, innovators, senior officials and members of civil society who have benefited and or have contributed to the growth of CSIR are present here. It's a proud day in the history of India's scientific research and innovation as we celebrate the Platinum Jubilee of CSIR. Some of the scientists present here will receive the Shanti Swaroop Bhatnagar Prize for Science and Technology later in the day. CSIR has also been active in acquiring patents and protecting intellectual property rights. Besides, of course, thousands of innovations and breakthroughs
in the last 75 years. It has developed thousands of technologies in various sectors, which include the first Indian tractor, Swaraj, in 1967, which was completely based on indigenous know-how. CSIR achieved the first breakthrough of flowering of bamboo within weeks, as against 20 years in nature. It was the first to analyze genetic diversity of the indigenous Andamanese tribes and to establish their origin out of Africa 60,000 years ago. CSIR was the first to introduce DNA fingerprinting in India. One of the great achievements of CSIR is the invention of the family planning pill Saheli, which empowers women in particular towards planned parenthood. CSIR also established the first ever in the world traditional knowledge digital library, which is accessible in 5 international languages: English, German, French, Japanese and Spanish. It has remained in the top 3 in the list of PCT patent applications. CSIR के प्लैटिनम जुबली समारोह के इन गर्वित क्षणों में हम माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी का हृदय से अभिनंदन करते हैं, अभिवादन करते हैं. We also extend a warm welcome to the Honorable Minister of Science and Technology and Earth Sciences, Dr. Harshvardhan, Honorable Minister of State for Science and Technology and Earth Sciences, Shri Y.S. Chaudhary, and Dr. Girish Sahni, DG CSIR and Secretary DSIR. गौरव और गरिमा से भरे इन पलों के साक्षी सभी अतिथिगणों का भी हम हार्दिक स्वागत करते हैं, अभिनंदन करते हैं. Council of Scientific and Industrial Research, established in 1942, is today an ensemble of 38 state-of-the-art national laboratories and 39 outreach centers with a pan-India presence. यानी कश्मीर से लेकर केरल तक और आसाम से लेकर गुजरात तक तमाम विविधताओं को समेटे सेक्टर्स में अपनी सेवाएं देकर राष्ट्र सेवा के पुण्य कार्य के लिए CSIR समर्पित है. ये सेक्टर्स हैं एरोस्पेस, बायोटेक्नोलॉजी, केमिकल्स, ड्रग्स, फार्मास्यूटिकल्स, एनर्जी, फूड प्रोसेसिंग, लेदर, मेटल्स एंड मिनरल्स इत्यादि. यानी सामान्य जन की समस्याओं को साइंटिफिक हल की दिशा में मोड़कर उनकी ज़िंदगी को न सिर्फ बेहतर बना रहा है बल्कि भारत की अर्थव्यवस्था को सशक्त भी कर रहा है CSIR. अब हम ऑनरेबल डॉक्टर हर्षवर्धन से सादर निवेदन करते हैं कि कृपया स्वागत स्वरूप अपनी भावनाएं व्यक्त करें. काइंडली डिलीवर वेलकम एड्रेस. Most respected Prime Minister Shri Narendra Modi ji, my colleague Shri Y.S. Chaudhary, Director General CSIR Dr. Girish Sahni, all the very senior distinguished scientists and research fellows, students present in this august audience, friends from the media. Friend, it's a very, very privileged moment for all of us in the CSIR family. We indeed feel privileged because of the presence of our dear Prime Minister in this function. I think, as far as I know, in the last 2 years, he is visiting our CSIR function and blessing us for the first time, and that too on this very, very prestigious and very, very pious occasion. We are going to start the Platinum Jubilee year celebrations today. So on behalf of all of you, all my dear scientists and all the awardees and everyone who has been putting his heart and soul into this CSIR movement over the years, I wish to express my heartfelt gratitude to the Prime Minister
for having agreed to bless us in this function. Also, I wish to congratulate all the awardees, all those who are going to get the distinguished awards today, and especially I want to congratulate all the scientists of the CSIR family, because I think you need to see to believe what the CSIR has done in the last 75 years, and we are indeed privileged to have such a galaxy of great scientists in CSIR. I want to congratulate all of them, express my heartfelt good wishes to all of you. This is a very, very proud moment, and I wish to pay my heartfelt tributes to Sir Modelier also today, and of course Dr. Shanti Swarup Bhatnagar's pious memory, who were instrumental in establishing CSIR on this particular day. This journey of 75 years has, I think, been very, very glorious. And Pradhan Mantri ji, I can say with a lot of conviction and lot of certainty, and that I say after having seen all the scientists working in the various labs, and that I can say after having visited most of these laboratories all over the country and have seen the diverse type of activities that are undertaken in CSIR, that CSIR is certainly one of the finest institutions of our country, and that is why today it is the only institution in the whole of India which is part of the first 100 best institutions of the whole world. Its contribution in terms of patents or research publications, impact factor, or anything which you can take as parameter is really extremely important and really worthwhile. And the history itself, so many things. It's a welcome speech, a very short moment, whether we talk of the indelible ink which has been able to give us the successful elections in this biggest democracy of the whole world, which is even after so many years exported to 25 countries of the world. The white revolution of the Amul milk powder for children, the green revolution which has produced for us the various tractors starting from Swaraj to Krishi Shakti for the small farmers, and the type of crops with the, you can say, advanced agricultural technologies, involvement of biotechnologists and our CSIR scientists that you have witnessed yourself. I have myself participated in functions in CMAP Lucknow where 6,000 farmers participated, and they were so happy, and it's, you have to actually believe their enthusiasm after only seeing them. And then of course in all the fields, whether it is the water, whether it is the energy sector, whether it is the strategic sector, in all the fields CSIR has done extremely well. And the food, nutrition, milk testing, there are so many things about which I can talk. And I want to use this occasion to request on behalf of all my scientists in CSIR, the Prime Minister, I can tell you, sir, that all my life I had worked in health. And in health we had some confidence of giving something for the treatment of the patients, creating some health institutions. But with science and technology and with the number of laboratories and the scientists that we have and the number of things that they have produced in the last so many years, I have now the confidence, and I am sure that it can only be done under the leadership of a very, very dynamic Prime Minister like you, who has an extraordinary vision, that CSIR and our scientists
belonging to the various other arms of our ministry, whether biotechnology, earth science, ocean science, and other departments. They have the potential, capability, knowledge, experience, and the wisdom to solve any problem of the country. You give them the problem and they will be able to solve it. The only request is you have to help us to make it a big movement in the country. And I can assure you that your vision of helping the farmers, helping the poor, helping the needy in this country, and to bring joy on the faces of every Indian, that we can assure you on behalf of CSIR, we can really do it to the best of our ability. And what you have seen just now in the exhibition, it is only the tip of the iceberg. Anything that we can think of, anything that we can imagine, I think I see that happening inside our science laboratories. We have the state-of-the-art laboratories, we have the state-of-the-art equipments, we have the best minds in our country as scientific minds, and the type of environment that has been created in the country under your leadership. Now we see that the brain drain is getting changed into brain gain. Already over 250 scientists have come back to India under the various schemes, scholarships, and they feel privileged to be actually working in India. And the industry is also feels happy and enthusiastic. And your involvement will certainly help us in bridging the gap which we are trying to bridge between the discoveries and the inventions and the products and the processes of our CSIR labs, getting translated into action, getting translated into delivery to the industry, and through the industry to the people. And as you had directed us in the couple of interactions that our scientists had with you, that we should work on at least 100 problems of the people. So now our scientists have refocused, reoriented themselves, and have connected science very well with the people. They are trying to diagnose the problems of the people, they are trying to solve the problems of the people, and we assure you, you give us the problem, we will keep solving it, you convert it into movement, and our people will be benefit. Thank you, sir. Once again, welcome, and once again express my heartfelt gratitude to you for the great favor that you have done to CSIR by obliging us for this function. We look forward to have your continued blessings for our scientists. Thank you. Namaskar. Jai Hind. Thank you, sir. May I now request Director General, CSIR, and Secretary, DSIR, Dr. Girish Sani, to present a report of CSIR on its Platinum Jubilee. Respected Prime Minister, President of CSR Society, Dr. Harshvardhan, our very own Vice President of the CSR system, Shri Chaudhary, who has helped us evolve many new thoughts, distinguished gathering, many distinguished scientists, CSR family, members of the press, and all those who are connected to these proceedings today across the country. It's a very joyous moment for me to stand before the Honorable Prime Minister of India this august audience on the happy occasion of the CSR 75th Foundation Day. Through all the years, CSR has in many ways touched the lives of common men and women, our farmers, our soldiers, our students, indeed all our citizens. The myriad areas of activity in society CSR has touched. CSR is ranked very high in the World Committee of Publicly Supported R&D Institutions, being recognized at number 12 by a very distinguished, respectable body of science matrix called the CIMAGO, which shows that CSR does not only publish papers of distinction, which we do, but also produces technology and patents. Although CSR has a very rich portfolio of innovative patents, we realize that these should not just remain as an impressive statistic on paper. Inspired by the directions given by the Honorable Prime Minister 4 months ago, our conviction that greater public value should be released from science and technology
specifically for the benefit of the poor, have become deeper, and our resolution to follow this path stronger. This requires a readjustment of our collective mindset, since reaping technological benefits from fundamental science has its share of challenges. Many technological innovations of the early stage are not attractive to investors, especially those that do not have the potential for large profits, but are still of significant relevance to society. Traditional venture fund sourced investments in such cases are often woefully lacking. To address this challenge, we are launching a CSR innovation fund, utilizing our own earnings to support entrepreneurs with creative ideas and nurture these in CSR labs. We have also launched 90 fast-track translation projects with tight deadlines and clearly resolved outcomes to address societal problems. We will nurture the whole value chain and deliver their outcomes along with industrial partnership and partnership with various stakeholders in society. Technology partners are not just small and big industry, but also our agricultural entrepreneurs and our farmers who serve our country as no one else. And today we were witness to our Prime Minister releasing new varieties for the benefit of farmers. The event also augurs the formal launch of an ambitious aroma and pharmaceutical plants mission for the first time to deliver value right from the beginning, and also looks to pave way for the Ayurvedic system and its propagation on a global level. Our labs have world-class infrastructure and high level of scientific know-how that should be utilized not only for fundamental science, patents, and applications, but also to nurture the scientific spirit amongst young people, whether they are students or whether they are aspirants to gain scientific knowledge and training for competitive jobs. We are launching, in fact, we have already launched a skill development initiative which will cater to the aspirations at the upper end of the value of skill development via our labs, its infrastructure, its resources, human resources, and all the things that we can do to train thousands of young men and women, young people, to be directly useful and attractive to industry. Similarly, through another plan called Jigyasa, we plan to incite curiosity and excitement in young school students for the scientific process. We will invite these students, including those from Kendriya Vidyalayas, state government schools, etc., across India, to spend quality time in our laboratories and gather first-hand experience of how science is actually done. These recently initiated programs are but a brief glimpse of our ambitions, which we are hopeful we will achieve through Team CSR, which includes 30 new directors appointed to head various labs over the recent past. We will use both emotion and devotion to make India the compassionate technology capital of the world. Jai Hind. थैंक यू डॉक्टर साहनी। भारत को नव प्रकाश से भरने वाले माननीय प्रधानमंत्री जी साइंस और टेक्नोलॉजी के चमत्कारों से भारत जन को विभूषित करने वाले साइंटिस्ट्स और रिसर्चर्स के समर्पण, परिश्रम और पराक्रम को राष्ट्र की ताकत मानते हैं। माननीय प्रधानमंत्री जी स्वयं जन जन से जुड़े हुए हैं और जन जन के जीवन स्तर को गुणवत्ता से जोड़ने के प्रति वे दृढ़ प्रतिज्ञ हैं। CSIR भी अपनी सेवाओं के द्वारा माननीय आपके सपनों का भारत बनाने के प्रति कृत संकल्प है। स्वावलंबी, सशक्त, समृद्ध, सुदृढ़ और प्रगतिशील भारत। We Indians are privileged to have our Honorable Prime Minister who is always in the mission mode when it comes to the service to the nation and its people. We request the Honorable Prime Minister Shri Narendra Modi ji to kindly address us. डॉक्टर हर्षवर्धन जी, श्रीमान चौधरी जी, श्रीमान साहनी जी और सभी शोध क्षेत्र के महानुभाव और विशेष रूप से आए हुए मेरे युवा साथी, सभी विद्यार्थी मित्रों, let me begin by congratulating the Indian Space Research Organization for successfully undertaking one of its most challenging satellite launches.
as many as 8 satellites have been launched in 2 different orbits in a single PSLV flight. I'm privileged to inaugurate CSIR's Platinum Jubilee function on the occasion of its 75th Foundation Day. Also, as a President of the Council, let me take this opportunity to welcome you all for the year-long celebrations of CSIR Platinum Jubilee. I especially welcome the 150 science students from Kendriya Vidyalayas who are present here today, as well as the students and research scholars at IITs and IISERs who are watching this event live. It is a matter of pride for every Indian that CSIR is celebrating 75th year of committed contribution to the development of modern India. This has been a journey dedicated to the nation, starting with the indelible ink, which is the hallmark of our democratic fabric. CSIR had left an indelible mark on every sphere of life. With an all-round approach to research and development, CSIR is a reflection of India in its diversity and heterogeneity. From agriculture to aerospace, biosensors to biopharmaceuticals, chemicals to climate change, drug development to deep sea explorations, from earth science to energy, food to fragrance, glass to genomics, housing to healthcare, instrumentation to informatics, leather to light combat aircraft, microbies to mining to materials, optics to optical fibers, pigments to power electronics, roads to robotics, sensors to solar energy, tractors to transport, UAVs to underwater vehicles, and water to weather forecasting. CSIR has registered its presence. Swaraj, the first tractor of the country, baby milk powder, the first supercomputer of the country, these are just some of the accomplishments of CSIR. Before arriving in this hall, I saw the achievements of CSIR showcased in an exhibition. I would like to see this exhibition taken to other parts of the country so that people can know and appreciate CSIR's achievements. Our efforts should be to prepare CSIR for modern technologies and emerging challenges. In my view, CSIR needs to create an ease of doing technology business. The platform to bring in the right stakeholders so that the technologies reach the intended beneficiaries. Recently, CSIR has developed the first Ayurvedic medicine
of the country for diabetic patients. All of you are aware about the potential of this medicine. Now our goal should be to make people aware of the benefits of this medicine so that they can make best use of the same. इतिहास गवाह है कि आधुनिक युग में कोई भी देश तब तक विकसित नहीं हुआ जब तक उसे विज्ञान और तकनीक का साथ नहीं मिला। इस वक्त देश 7% से अधिक विकास दर से आगे बढ़ रहा है और उसे वैज्ञानिक और औद्योगिक अनुसंधान परिषद जैसे संगठनों के सहयोग की आवश्यकता है। इसलिए आपकी रणनीति का ये हिस्सा होना चाहिए कि वर्तमान चुनौतियों से निपटने के साथ ही देश के भविष्य के लिए भी हम एक रोड मैप तैयार करें। जैसे CSIR ने इस साल सोलर ट्री बनाया। ये सोलर ट्री सिर्फ 4 स्क्वायर फीट की जगह घेरता है। अब आपको ये प्रयास करना चाहिए कि कैसे देश के कोने कोने में ये सोलर ट्री पहुंचे और लोगों को उसका लाभ मिले। सौर ऊर्जा, सोलर एनर्जी देश में बिजली समस्या के निपटारे के लिए बहुत अहम है। आप सभी इस क्षेत्र में क्रांति ला सकते हैं। सरकार का लक्ष्य 2022 तक देश में 100 गीगावाट सौर ऊर्जा पैदा करने का है और उस लक्ष्य प्राप्ति के लिए सरकार को आप सब वैज्ञानिकों से पूरा सहयोग चाहिए। जैसे सोलर सेल की एफिशिएंसी को कैसे कम से कम लागत में अधिक से अधिक बढ़ाया जा सकता है। कोई भी तकनीक तभी कामयाब होती है जब वो देश के सामान्य मानवी के काम आए। किसान भाइयों की आज जो आवश्यकता है, गरीब माताएं बहनें, नौजवान अपनी रोजमर्रा की जिंदगी में किस तरह की समस्याओं का सामना कर रहे हैं, कैसे आपका आविष्कार या अनुसंधान उनकी मदद कर सकता है, ये लगातार सोचना होगा और परिणाम निकालकर दिखाना होगा। वैज्ञानिक और औद्योगिक अनुसंधान परिषद के गठन का मकसद भी यही है। वैज्ञानिक अनुसंधान, ये आविष्कार एक दिन या एक साल का काम नहीं है, ये निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है। यही सतत प्रक्रिया एक दिन गेम चेंजर के रूप में, गेम चेंजिंग टेक्नोलॉजी के रूप में जन्म लेती है। CSIR बहुत पहले से इस काम को करती रही है, लेकिन अब एक बहुत बड़ी बदलाव की मैं आवश्यकता देखता हूं। हम रिसर्च करते हैं, करते रहें, लेकिन क्या टाइम बाउंड डिलीवरी ये हमारा प्राइम एजेंडा बन सकता है क्या? मेरी आपसे बहुत सारी उम्मीदें हैं और कभी कभी तो लगता है मेरी उम्मीदें जरा ज्यादा है, लेकिन ये इसलिए है क्योंकि आप पर भरोसा है। 75 साल के आपने जो देश को दिया है, उसके कारण मुझे लगता है शायद आप ज्यादा दे सकते हैं, और मांगने वाला भी तो उसी से मांगेगा जो दे सकता है।
और इसलिए जब हम 75 साल मना रहे हैं तब टाइम बाउंड डिलीवरी इस एक वन लाइन एजेंडा, इसको हम कैसे आगे ला सकते हैं। अनुसंधान के साथ ही हमें वैल्यू चेन को भी मजबूती के साथ लिंक करने पर भी ध्यान देना होगा। रिसर्च इंस्टीट्यूट के साथ सरकार, उद्योग जगत, गैर सरकारी संगठन, सर्विस प्रोवाइडर, उपभोक्ता, इनके तालमेल पर, क्योंकि कोऑर्डिनेटेड एफर्ट्स के बिना परिणाम नहीं मिलता है और उस पर हमें ध्यान देना पड़ेगा। कभी कभी ऐसा भी देखा गया है कि हम आविष्कार तो कर लेते हैं लेकिन आम लोगों को उसका लाभ नहीं होता है, या तो कभी आम लोगों तक उसकी जानकारी नहीं पहुंचती, या आम आदमी की आवश्यकताओं के अनुसार उसका मॉडिफिकेशन नहीं होता है। सिद्धांत के तहत बहुत बढ़िया चीज होती है और इसलिए जो संसाधन उपलब्ध है और जो समस्या है, उन दोनों के बीच में हम मेल बिठा करके चीजों को अगर लाएंगे, सरलीकरण करेंगे, तो मैं समझता हूं कि इसका व्याप सामान्य मानवी की उपयोगिता के साथ बहुत सहज रूप से एक्सपांड हो सकता है। वैज्ञानिक अनुसंधान संस्थानों को भी स्टेक होल्डर से रिसर्च और डेवलपमेंट के स्टेज पर फीडबैक लेने के सिस्टम को भी बनाना होगा। अगर हमारा स्टेक होल्डर के साथ इंटरेक्शन नहीं है, उसकी आवश्यकताओं को हम नहीं समझते हैं, तो हो सकता है कि हमारी प्रोडक्ट कंपटीशन में बहुत बड़े बड़े अवार्ड लेकर के आ सकते हैं, इनाम लेकर के आ सकती है, बहुत बड़े बड़े मैगजीन में आर्टिकल छप सकते हैं, लेकिन भारत जैसे देश में उसकी सफलता सामान्य मानवीय की समस्याओं के समाधान में वो कैसे उपयोगी होती है, वही उसका मानदंड होता है। सीएसआई को अपनी प्रयोगशालाओं के द्वारा ऊर्जा से भरे देश के नौजवानों के लिए और ज्यादा द्वार खोलने के प्रयास करना चाहिए। कोशिश होनी चाहिए कि सीएसआईआर के लैब्स में ज्यादा से ज्यादा छात्रों को भी रिसर्च का मौका मिले। हम देखते हैं कि आजकल ये टीवी वाले टैलेंट सर्च के लिए बहुत बड़े कार्यक्रम करते हैं, गाने बजाने वाले, नाचने वाले, और देखते हैं पहले हमने सोचा नहीं इतनी टैलेंट नजर आती है छोटे छोटे बच्चों में, और इसी एक ही फील्ड में टैलेंट नहीं है, इनकी हर क्षेत्र में टैलेंट पड़ी है, वो अवसर के तलाश में है। क्या हमारी लैब्स इन हमारे बच्चों के लिए आकर्षण का केंद्र बन सकती है? उसका मन कर जाए, चलो भाई सैटरडे संडे है, नहीं जाना है, मामा के घर नहीं जाना है, चलो आज लैब में चला जाऊं, साहब कुछ समय देंगे, कुछ बताएंगे तो करता रहूंगा। आप में से जो बड़े बड़े साइंटिस्ट बने हैं ना, वो अपना बचपन को याद करें, आपने यही पागलपन था, तभी तो आप यहाँ पहुँचे हैं। इसी पागलपन वाले बहुत लोग हैं, किसी ने आपकी उंगली पकड़ी होगी, किसी ने आपका हाथ पकड़ा होगा, कोई आपको लैब में ले गया होगा। इन बच्चों को भी कोई ले जाए, इस देश का भाग्य बदल दें। सीएसआईआर को अपने संसाधनों की मदद से देश में नए एंटरप्रेन्योर्स बनाने में भी सशक्त भूमिका निभानी होगी। हम स्टार्टअप इंडिया, स्टैंड अप इंडिया मूवमेंट चला रहे हैं। जो नौजवान कुछ करना चाहते हैं और आपने कुछ खोज करके रखा है, उस सिद्धांत से उसका परिचय करवा दिया जाए तो प्रोडक्ट का साहस वो कर सकता है। क्या हमारा सीएसआईआर का मूवमेंट और भारत सरकार का स्टार्टअप इंडिया का मूवमेंट, जिसके कारण युवा पीढ़ी जो नया कर गुजरना चाहती है, और हमारे पास एक प्रकार की शोध है, उसके पास एक समस्या है,
आपकी शोध, समस्या और उसकी प्रोडक्ट यील्ड, ये तीनों मिलकर के एक नई चीज दुनिया को दे सकती है, एक नया क्षेत्र खुल सकता है क्या? और ये सब संभव है। और इस संभावनाओं को हम कैसे तराशें, उस पर अगर हम काम करें तो मैं समझता हूं कि ये हम काफी कुछ कर सकते हैं। विभिन्न संस्थाओं द्वारा दी जा रही रिसर्च फंडिंग को चैनलाइज करने की भी आवश्यकता है। क्या एक ऐसा वेब पोर्टल नहीं बनाया जा सकता जिस पर फंडिंग, रिसर्च और उसके नतीजों का पूरा पूरा ब्यौरा हो सकता है कि जो आपकी रिसर्च की सीक्रेट हो वो मैं ओपन करने के लिए नहीं कह रहा हूं, वो आपकी अमानत है, लेकिन आप चीजें तो रख सकते हैं। वरना क्या होता है, एक लैब में जो काम हो रहा है उसी प्रकार का काम दूसरी लैब में भी 10 लोग कर रहे हैं। हमारी एनर्जी वेस्ट हो रही है, हमारा फंडिंग वेस्ट हो रहा है। अगर एक प्लेटफॉर्म होगा, सब लोग देखेंगे हाँ भाई ये 10 चीज ऐसी हैं जो आज हवा में है, मैंने उसको पकड़ने की कोशिश की लेकिन ऑलरेडी काम चल रहा है, चलिए मैं 11वीं पे जाता हूं। ये हम एक पोर्टल बना करके, और मैं समझता हूं कि अच्छा इससे ये भी होगा कि हम लोगों को क्वेश्चन भी रख सकते हैं, समस्या आगे रख सकते हैं, वो नए सिरे से सोचते हैं हाँ मैंने भी इतना सोचा है, मैं आगे कर सकता हूं। भारत सरकार ने 2022, जबकि देश की आजादी के 75 साल हो रहे हैं, और देश की आजादी के 75 साल, जैसे आपके CSIR के 75 साल एक आपके मन में उमंग है, उत्साह है, देश की आजादी के 75 साल ये भी एक उमंग, उत्साह और नए कुछ कर गुजरने के कारण बनना चाहिए। अभी हमारे पास कुछ वर्ष बीच में है। हम 2022 में देश के किसानों की इनकम डबल करने का लक्ष्य लेकर के चल रहे हैं। इस लक्ष्य को पूरा करने के लिए आपको फसलों की नई वैरायटी तैयार करनी होगी। इसके विशेष तौर पर दालों की ऐसी वैरायटी डेवलप करें तो रेनफेड एरियाज में पैदा की जा सके और उनकी पैदावार भी ज्यादा हो। ये काफी हद तक शरीर में प्रोटीन की कमी से होने वाली कुपोषण की समस्या को दूर करने में मदद करेगा। अगर हम 2022 एग्रीकल्चर सेक्टर में इनकम डबल करने का सपना और खास करके हमारे देश के गरीब मानवी की प्रोटीन की रिक्वायरमेंट और प्रोटीन की प्राप्ति का आधार पल्सीज हैं, तो उसमें हम कैसे इंटरवेंशन करें, प्रति हेक्टर यील्ड कैसे बढ़े, जो हमारे पल्सीज हो उसमें प्रोटीन कंटेंट कैसे बढ़े, और ये आज के वैज्ञानिक युग में, जेनेटिक साइंस के युग में इंटरवेंशन से हमारा साइंटिस्ट कर सकता है। और हमारा किसान भी, अभी मैं देश के दूर सुदूर इलाकों के किसानों से बातचीत करके आया, आपने यहां पर देखा होगा, कुछ न कुछ नया करने का एक इरादा है उनके मन में। क्या हमारे वैज्ञानिक इसको गति दे सकते हैं, दिशा दे सकते हैं और तय समय में परिणाम दे सकते हैं। वैज्ञानिकों को सब्जियों की नई किस्में भी विकसित करनी चाहिए। हमारा उद्देश्य न सिर्फ उत्पादन और खपत के गैप को कम करने का होना चाहिए, बल्कि दूसरे देशों में निर्यात करने का भी होना चाहिए। मैं निर्यात की बात इसलिए कर रहा हूं कि मैं पिछले दिनों गल्फ कंट्रीज में गया। वे एक समस्या से जूझ रहे हैं। उनका कहना है कि हमारे यहां तो 1 इंच भी पानी वर्षा नहीं होती है, हमें खाने के लिए हर चीज बाहर से लानी पड़ती है, फल फूल सब्जी अनाज सब कुछ। हमारा पॉपुलेशन बढ़ रही है, पेट्रोलियम डॉलर है, हमारे पास धन बहुत है, संपत्ति बहुत है, लेकिन चीजें हमें बाहर से लानी पड़ेगी। क्या हम गल्फ कंट्रीज की रिक्वायरमेंट को ध्यान में रखते हुए यहां से उस प्रकार की रिक्वायरमेंट को हम एक्सपोर्ट करें? हमारे एग्रीकल्चर एरिया में फोकस टारगेटेड ऐसी चीजें डेवलप करने की दिशा में सोच सकते हैं ताकि एक एश्योर्ड मार्केट आने वाले 50-100 साल तक हम प्राप्त कर सकते हैं। क्वालिटी भी हो, क्वांटिटी भी हो, दुनिया के कंपटीशन में वो अफोर्डेबल हो। मुझे विश्वास है कि हमारे वैज्ञानिक इस लक्ष्य को पार कर सकते हैं। तो भारत के किसान की इकोनॉमी को तो फायदा होगा ही होगा, लेकिन हमारे पड़ोस में गल्फ कंट्रीज की रिक्वायरमेंट को भी बहुत नियरेस्ट हम है, उसको सबसे कम खर्चे में चीजें पहुंचने की संभावना वाला कोई देश है तो हिंदुस्तान है।
ऐसा अवसर हम क्यों जाने दें? और इसलिए एग्रीकल्चर सेक्टर में कई चीजों पर हम सोच सकते हैं। CSIR ने हेल्थ सेक्टर के लिए काफी कुछ अच्छा किया है, लेकिन हमारे देश में लोगों को आज भी टीबी, मलेरिया, चिकनगुनिया, डेंगू ऐसी बीमारियों का सामना करना पड़ रहा है। CSIR इन बीमारियों से कैसे राहत दिला सकता है, इस पर समयबद्ध लक्ष्य के साथ रिसर्च किए जाने की आवश्यकता है। जैसे कि क्या हम डायग्नोस्टिक किट्स डेवलप करें जो कॉस्ट इफेक्टिव हो और बीमारियों की जल्दी जांच में सहायता करे, क्योंकि आज हेल्थ सेक्टर ज्यादातर टेक्नोलॉजी ड्रिवन हो चुका है। डॉक्टर ज्यादा जांच नहीं करता, ज्यादा मशीन जांच करता है। आपके भीतर क्या कमी है, क्या तकलीफ है, वो मशीन तय करता है। डॉक्टर वो एक सॉफ्टवेयर की तरह फिर उसमें से निकालता है कि ये है तो ये देना, ये है तो ये देना, अब ये देना, वो बाद में देना। ये स्थिति आ गई है। जब टेक्नोलॉजी ड्रिवन पूरा मेडिकल साइंस हो गया है, तो मैं समझता हूं कि आपके लिए बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है। सिर्फ दवाइयां नहीं, ये किट की जो मेरी कल्पना है, वो हम जितनी जादू पर गांव के अंदर भी एक आशा वर्कर के पास किट होगी, वो तय कर सकती हैं कि इन्हीं कठिनाइयां हैं और इसके लिए, और वो टेक्नोलॉजी के लिए इतना वेल कनेक्टेड हो कि हम एपिडेमिक को भी तुरंत जांच सकते हैं, संभावनाओं को तुरंत देख सकते हैं। और ये आज के युग में सब कुछ संभव है। मैं आशा करता हूं कि हम एक मास स्केल पर इन चीजों को एड्रेस करने की दिशा में अनुसंधान के नए क्षेत्रों की ओर जा सकते हैं क्या, और हमारे नौजवानों को हम चुनौती दें, अवसर दें, वे कुछ करके दिखाएंगे, ये मेरा विश्वास है। और हम ये भी जानते हैं, गरीब को बीमारी का कारण सबसे बड़ा कोई है तो गंदगी है। अब मैं ये आपको तो नहीं कहता हूं कि आप गंदगी साफ करने जाइए, लेकिन टेक्नोलॉजी के द्वारा हम डिस्पोजल के संबंध में नए अनुसंधान करके एफोर्डेबल टेक्नोलॉजी डेवलप कर सकते हैं क्या? कोई बहुत बड़ा रॉकेट साइंस नहीं होगा, लेकिन जो नए नए स्टार्टअप्स हैं, ये कितना बड़े व्यवसाय की संभावना है कि हम वेस्ट मैनेजमेंट, वेस्ट टू वेल्थ क्रिएशन, इन सारे चीजों में हम टेक्नोलॉजी इंटरवेंशन जितना ज्यादा देंगे तो गंदगी को भी एक व्यापार में लोग बदल सकते हैं और स्वच्छता अपने आप आ सकती है, जो देश के हेल्थ सेक्टर को बहुत बड़ी मदद कर सकती है। इवन न्यूट्रिशन के इश्यूज को भी गंदगी से मुक्ति से हम एड्रेस कर सकते हैं। अगर गंदगी से मुक्ति होती है तो हम पेयजल में शुद्धता को भी बल दे सकते हैं, और पेयजल की शुद्धता, ड्रिंकिंग वाटर में अगर शुद्धता है तो कई बीमारियों से मुक्ति का मार्ग बन जाती है। ये सारी चीजें ऐसी हैं कि जो सिर्फ मेडिकल साइंस तक लिमिटेड नहीं है, वैज्ञानिक जगत के इंटरवेंशन की आवश्यकता है। ऐसा नहीं है कि दुनिया में टेक्नोलॉजी नहीं है, भारत को एफोर्डेबल टेक्नोलॉजी के लिए आपका इंटरवेंशन चाहिए। हमारे उपलब्ध संसाधनों के आधार पर टेक्नोलॉजी डेवलप हो, यह हमारी आवश्यकता है। और उन आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए कभी कभार क्या होता है कि हमारे मन में एक विचार आया, हम खोज करते रहते हैं, उसका उपयोग 50 साल 100 साल के बाद होगा। हमारे सामने जो समस्याएं हैं, उन समस्याओं को ध्यान में रख करके हम विज्ञान को ले जाएं, मैं समझता हूं इस देश, भारत जैसे देश के लिए वो पहली आवश्यकता है। और अगर इस आवश्यकताओं में सफलता मिलेगी, वो सफलता अपने आप में आपको ग्लोबल लेवल की आवश्यकता या नए युग की आवश्यकताओं के अनुसार रिसर्च करने की ताकत दे सकती है। CSIR ने वाटर सिक्योरिटी पर भी काफी कार्य किया है, लेकिन अपने वाटर रिसोर्सेज को इकोनॉमिकली, एफिशिएंटली और इफेक्टिवली प्रयोग करने की दिशा में प्रयास और तेज किए जाने की आवश्यकता है।
हम जानते हैं पानी का संकट की चर्चा बहुत होती है, हर कोई लिखता है युद्ध की संभावनाएं पानी से सटी हुई है। अब वो जिसको लिखना है लिखते रहेंगे, लेकिन जो लैब में बैठा है उसको तो समाधान खोजना होता है कि हम कैसे इस पानी के संचय को, पानी के सिंचन की ओर हम ध्यान दें। अब आज हम कोशिश कर रहे हैं, कृषि क्षेत्र में हमारा प्रयास है पर ड्रॉप मोर क्रॉप। और हम तो मैं ये भी कहता हूं, भारत जैसे देश में जहां जमीन का महत्व बढ़ता चला गया है और इसलिए पानी और जमीन दोनों को ध्यान में रखते हुए पर ड्रॉप मोर क्रॉप हो, साथ साथ एन इंच ऑफ लैंड एंड ए बंच ऑफ क्रॉप। ये इंच ऑफ लैंड एंड बंच ऑफ क्रॉप, ये जब तक हम मिशन लेकर के नहीं चलेंगे तो हम पानी के उपयोग का भी महत्व नहीं समझेंगे, जमीन के उपयोग का भी महत्व नहीं समझेंगे। नदी जल प्रदूषण बहुत बड़ी समस्या के रूप में हमारे सामने है। गंगा की सफाई का काम कई वर्षों से चल रहा है, कई सरकारें आकर के गई। हमने वैज्ञानिक तरीके ही ढूंढने होंगे, जन सामान्य को प्रशिक्षित करना और वैज्ञानिक मार्ग खोजने, यही चीजें हैं जो हमारे समस्याओं का समाधान दे सकती है। आम नागरिक की एक आवश्यकता, अब हम देखें आज के युग में हिंदुस्तान में जितनी जनसंख्या है उससे ज्यादा मोबाइल फोन है, लेकिन बैटरी की आयु ये उसके लिए टेंशन का विषय है। उसको बैटरी रिचार्ज कराने के लिए बेचारे गांव के आदमी को दूसरे गांव जाना पड़ता है और बैटरी चार्ज होने के लिए वहां खड़ा रहना पड़ता है, जरा बैटरी चार्ज करता हूं। स्मार्टफोन की बैटरी को लेकर एक परेशानी महसूस हो रही है और जो ज्यादा उपयोग करते हैं वो तो बैटरी बैंक साथ लेकर के घूमते रहते हैं। क्या हमारे वैज्ञानिक इसका सॉल्यूशन नहीं दे सकते क्या? और कितना बड़ा मार्केट है, आप कल्पना कीजिए। और मैं नहीं मानता हूं कि जो विज्ञान छोटे लेवल पर अप्लाई हुआ है वो बड़ी ताकत के रूप में कोई एलरा न हो, ऐसा नहीं हो सकता। मैं साइंटिस्ट नहीं हूं, लेकिन इतना तो मैं समझ सकता हूं आप कर सकते हैं। अगर आप इन चीजों को प्रायोरिटी दें तो उसका कॉमर्शियल वैल्यू भी बहुत है, रिक्वायरमेंट बन चुकी है। आज आप देखिए स्पोर्ट्स, खेल जगत जिस प्रकार से उसने रूप लिया है वो सिर्फ खेल के मैदान का विषय नहीं रहा। अभी मैं वहां पर आपके प्रदर्शनी में कुछ चीजें रखी थी, मैंने देखा तो उन्होंने मुझे बताया कि लेदर की चीजें ऐसी ऐसी हम बनाते हैं। मैंने उनको सवाल पूछा, क्या कोई आपके यहां रिसर्च हो रही है कि किस प्रकार के स्पोर्ट के लिए किस प्रकार के जूते चाहिए, किस प्रकार के कॉस्ट्यूम चाहिए, इस पर कोई रिसर्च हुआ है क्या जो उसके फिजिकल फिटनेस में प्लस करता हो, कंफर्ट में प्लस करता हो? अब ये अपने आप में बहुत बड़ा रिसर्च हो रहा है दुनिया में। क्या हम इस प्रकार की चीजें, इतना ही नहीं, खिलाड़ी के पास अच्छे साधन हो, खिलाड़ी के पास अच्छा मैदान हो, अच्छा कोच हो, उससे ही वो खेल जगत में सिद्धियां प्राप्त नहीं करता है। खेल जगत के डेवलपमेंट के लिए मान्य हुआ है कि एक साइंटिफिक एनवायरनमेंट रिक्वायर होता है। उसको साइकोलॉजी से लेकर के कंफर्ट तक की हर चीज की व्यवस्था करनी पड़ती है। क्या भारत का वैज्ञानिक जगत, हमारे जो स्पोर्ट्स फील्ड के लोग हैं, उनके लिए उन प्रकार, और एक बहुत बड़े व्यावसायिक क्षेत्र की संभावनाएं मैं देख रहा हूं स्पोर्ट्स में, हम उसके लिए कोई रिसर्च की चीजें, एक वैज्ञानिक एनवायरनमेंट क्या हो। अब स्पेस साइंस में आप देखते हैं जितना स्पेस में जाने वाले लोगों की चिंता होती है उतनी स्पेस के लोगों के लिए साइंटिफिक एनवायरनमेंट में उनकी ट्रेनिंग होती है, तब जाकर के उनको भेजा जाता है। स्पोर्ट्स की दुनिया भी इसी प्रकार की है। क्या हम उस एनवायरनमेंट के
पैरामीटर तय कर सकते हैं, उसके लिए उस प्रकार की व्यवस्थाएं विकसित कर सकते हैं। कहने का हमारा तात्पर्य ये है कि हम विज्ञान के क्षेत्र को इतना सामान्य मानवीय से जोड़ें, क्योंकि 21वीं सदी एक टेक्नोलॉजी ड्रिवन सदी है। अगर पूरी शताब्दी टेक्नोलॉजी ड्रिवन होगी तो हम इस प्रकार के नए अनुसंधान को 21वीं सदी की आवश्यकता और भारत जैसे देश की आवश्यकता के साथ जोड़ सकते हैं क्या? हमारी पारंपरिक समझ और ज्ञान को अगर हम मॉडर्न सिस्टम पे जोड़ सके तो भी कई समस्याओं का हल निकल सकता है। योग हो, आयुर्वेद हो, आज पूरी दुनिया में उसकी चर्चा है, लेकिन उसका वैज्ञानिक रूप नहीं पहुंच पा रहा है। क्या हम उस दिशा में काम कर सकते हैं? और आज इस अवसर पर वैज्ञानिकों को नेशनल अवार्ड देकर भी सम्मानित किया जा रहा है। जिन वैज्ञानिकों को ये सम्मान प्राप्त हो रहा है उनको मैं बहुत बहुत बधाई देता हूं। जिन्हें 2012-15 का शांति स्वरूप भटनागर पुरस्कार है, 2012-14 का CSIR डायमंड जुबली टेक्नोलॉजी अवार्ड है, ग्रामीण विकास में साइंस एंड टेक्नोलॉजी इनोवेशंस के लिए CSI का अवार्ड है, 2016 का CSIR टेक्नोलॉजी अवार्ड है, 2016 का GN रामचंद्रन गोल्ड मेडल है, 2016 का CSIR यंग साइंटिस्ट अवार्ड दिया जा रहा है। ये सम्मान, ये अवार्ड न सिर्फ वैज्ञानिकों के लिए हैं, बल्कि उनके परिवार, उनके मित्रों, विशेष करके उनके शिक्षकों को भी लिए भी हैं। ऐसे शिक्षक जिन्होंने बचपन से ही उन्हें विज्ञान और अनुसंधान आविष्कार के लिए प्रेरित किया। देश को आज आप सभी पर गर्व है। मुझे उम्मीद है कि इस सफर पर आप एक नए उमंग और हौसले के साथ और मजबूती के साथ आगे बढ़ेंगे। ये अवार्ड आपके अलावा दूसरों को भी देश के विकास के लिए आवश्यक नए अनुसंधान, नए आविष्कार की प्रेरणा देगा। स्कूल, कॉलेज और यूनिवर्सिटियों में पढ़ने वाले नौजवान आज आपको रोल मॉडल की तरह देखते हैं। इस अवसर पर मैं आप सभी से अपेक्षा करता हूं कि आप नौजवान पीढ़ी का मार्गदर्शन करने की अपनी जिम्मेदारी भी बखूबी निभाएं। CSIR से जुड़े देश के प्रतिष्ठित संस्थानों में काम कर रहे वैज्ञानिकों को स्कूल, कॉलेज में पढ़ने वाले छात्रों के साथ अपना संपर्क बढ़ाना चाहिए। क्या यह संभव है कि महीने में कम से कम एक बार हर वैज्ञानिक कोई न कोई कॉलेज या यूनिवर्सिटी में लेक्चर देने के लिए जाए, उनसे विचार विमर्श करें, नई पीढ़ी से चर्चा करें? क्या संभव है कि आज जिन जिन महानुभावों को अवार्ड मिला है वो एक या स्कूल या कॉलेज को मेंटर के रूप में एडॉप्ट करें? अगर वो एक स्कूल या कॉलेज में सिर्फ 5 छात्रों को भी मेंटर के लिए पसंद करके उनके पीछे थोड़ा समय दें तो देश में 300 नए वैज्ञानिकों को उभरने की संभावना खड़ी होती है। तो जिस प्रकार से देश को आप एक नया आविष्कार भेंट करें और पीढ़ियों का भला कर सकते हैं, वैसे अगर आप देश को 1 या 2 साइंटिस्ट भी भेंट करें तो शायद सदियों का बड़ा काम करके जाएंगे। मैं फिर एक बार आप सबको बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं। 75 की इस महत्वपूर्ण घटना आने वाले 2022 के लिए आप भी तय कीजिए। 2022 जब देश की आजादी के 75 साल होंगे, हम देश के लिए वैज्ञानिक दृष्टि से ये चीजें देके रहेंगे, समय सीमा में देके रहेंगे, देश की आवश्यकताओं की पूर्ति करेंगे। इसी एक संकल्प के साथ हम इस 75 वर्ष की यात्रा और आने वाले 25 साल के सपनों को लेकर के आगे बढ़े, इसी एक अपेक्षा के साथ आप सबको मेरी बहुत बहुत शुभकामनाएं। धन्यवाद।
बहुत बहुत धन्यवाद माननीय प्रधानमंत्री जी, आपके अपनेपन से भरे हुए संबोधन के लिए। आपने इस समारोह में पधारकर समस्त साइंटिस्ट कम्युनिटी को सम्मान दिया माननीय, और यंग रिसर्चर्स और अचीवर्स को प्रोत्साहित किया। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अपनी गरिमामय उपस्थिति से आपने इस समारोह को यादगार बना दिया। राष्ट्र विकास के इस महायज्ञ में CSIR भी हृदय से सहभागी है माननीय। बहुत बहुत धन्यवाद आपका पधारने के लिए। हम माननीय मंत्री महोदय का भी हार्दिक धन्यवाद करते हैं पधारने के लिए, और सभी अतिथिगण जो मंच पर विराजमान हैं उनका भी बहुत बहुत धन्यवाद। "75 glorious years of CSIR being hailed by the Honorable Prime Minister of India, Shri Narendra Modi, as he greets the future scientists of our country." "75 glorious years